A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject economics. Dear students, in the previous lecture of economics, we have discussed about the concept of production possibility curve. In that, we have discussed about the meaning of PPC. That means that is a curve showing the different combination of two goods which can be produced with the available resources on the assumption that resources are given and the technology is also given and remain constant. Along with that, we have seen about the production possibility schedule and diagram in the previous lecture. Apart from this, we have discussed about the attainable and unattainable combinations of output through the PPC, and thereafter we have discussed about the shifting and rotation of PPC, in which we have discussed about the change in resources, in that increase in resource and decrease in resource, and the second, that is change in technology, in that efficient use of technology for the good X, efficient technology for the good Y, and efficient technology for the both good X and Y we have discussed. Dear students, today we are going to discuss about the basic properties of PPC and thereafter the fuller utilization of resources and the growth of resources. So let's get started. Dear students, initially we will discuss the two basic properties of PPC. The very first basic property of PPC is that it always slopes downward. And what is the direction? The direction of PPC's slope is फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो आपका पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड होता है वो क्या होता है बेटा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लोप डाउनवर्ड होता है. ये इसकी डायरेक्शन है. एंड वाई इज इट सो? बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, जब इकोनॉमी में या एक प्रोड्यूसर क्या करता है, इकोनॉमी में फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, तो क्या होता है, इट इज़ नॉट फिजिबल टू प्रोड्यूस बोथ द गुड्स. दोनों गुड्स को साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है. जिसका मतलब ये, अगर हमें एक्स की और यूनिट को प्रोड्यूस करना है, एक्स गुड की और यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, तो बट श्योर हमको वाई गुड की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. दैट मीन्स इट इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई. वन गुड हैव टू बी सेक्रीफाइस फॉर द मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड अदर गुड. Now the second basic property is PPC is concave to the point of origin. Where is the point of origin? Where in the diagram we used to write down 0. That is the point of origin. And if we talk about the PPC, so it is always concave to the point of origin. Why? Because to produce each additional unit of good X, हर एक x की एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? y की मोर एंड मोर यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. दैट इज इनवर्स रिलेशन. आगे देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x टेंड्स टू इंक्रीज इन द टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड y. अब x की एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको y का सेक्रीफाइस कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा. And then only we will be able to produce the more amount of good X. It shows that the actual level of output is less than the potential level of output. ये किस बात को इंडिकेट करता है? ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है वो आपके पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से कैसा है बेटा? लो है. ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक टॉपिक है छोटा सा, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो व्हाट इज़ दिस? इसने बताया बेटा एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व AD. अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में वो डायग्राम देखेंगे. कोई भी पॉइंट जो कि ऑन द PPC होता है, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व corresponds to fuller utilization as well as efficient utilization of resources. कहने का मतलब ये, कोई भी पॉइंट जो कहाँ पर है बेटा? एनी पॉइंट दैट इज ऑन द PPC इंडिकेट्स द फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आगे देखिए, इट शोज द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल. दैट मीन्स मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट को, कि आप मैक्सिमम कितना
प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है? वो मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक कि आप पहुँच सकते हैं, जहाँ तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। See further, any point under the PPC will indicate the situation of underutilization or inefficient utilization of resources. और अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी हुआ तो वो अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। नाउ इसी को हम डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं बेटा। तो इसने क्या बताया था? एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी, दैट मीन्स ये आप कर्व देख रहे हैं ए डी, तो इस ए डी के बीच में कोई भी पॉइंट आए, जैसे यहाँ पे इसने एक पी पॉइंट लिया है, ऐसे ही अगर ए डी कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा, कोई भी पॉइंट, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? इट विल बी द फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हुए हैं। अब इसने एक और पॉइंट बताया था, अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी हो, जैसे कि यहाँ पे एफ पॉइंट है, जी पॉइंट है, ये किसको इंडिकेट करते हैं? दीज यूज टू इंडिकेट द अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज के अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? फुल यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए इसमें क्या बताया? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इज द in the terms of increased level of output is possible only when the economy generates more resources. अच्छा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कब हो सकती है? जब इकोनॉमी और रिसोर्सेज को, हायर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को जनरेट करना स्टार्ट कर दे, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। इफ़ मोर रिसोर्सेज आर जनरेटेड, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा जनरेट होंगे तो क्या होगा? बट ओबियसली द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा तो उसमें क्या इंडिकेट करेगा? इट विल इंडिकेट अ शिफ्ट ऑफ पीपीसी। पीपीसी का क्या होगा? शिफ्ट होगा फ्रॉम ए बी टू सी डी। अब ए बी टू सी डी हम लोग को डायग्राम में देखेंगे स्लाइड में। ए बी टू सी डी का मतलब देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में राइटवर्ड क्या होगा? शिफ्ट होगा। आगे देखिए, राइटवर्ड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके रिसोर्स इंक्रीज हैं उसकी अवेलेबिलिटी को क्या इंडिकेट करता है? आपके पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट जाना। देखिए इसने यहाँ पे एक कर्व दे रखा, ए बी इनिशियल कर्व है विद द गिवन रिसोर्सेज। अब जैसे ही रिसोर्सेज इंक्रीज हुए तो हमें एक नया कर्व मिला सी डी, जो कि क्या हो गया? पहले प्रीवियस कंडीशन की पीपीसी के कंपैरिजन में राइटवर्ड क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। नाउ सी अ स्मॉल नोट इज ओवर हेयर, स्किल इंडिया मिशन। हम सब ने सुना है स्किल इंडिया मिशन, ठीक है? हम उसको रिलेट करेंगे पीपीसी से। सो सी ओवर हेयर, स्किल इंडिया मिशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए इसमें क्या बात करते हैं? अगर हम ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज की ग्रोथ दोनों तरीके से हो सकते हैं। देयर कैन बी द क्वांटिटेटिव इंक्रीमेंट इन द रिसोर्सेज और देयर कैन बी द क्वालिटेटिव ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। क्वांटिटी की भी ग्रोथ हो सकती है और क्वालिटी की भी ग्रोथ हो सकती है। इफ़ वी टॉक अबाउट the Skill India mission, in this mission the skill education is spread in the country, that is imparted to the youngsters, to the youth and to the interested people, and as a result the human resource get the more amount of quality in comparison to previous situation. आगे देखिए, the Skill India mission by the government of India is expected to improve the quality of human resources. अब क्या होगा? जब स्किल इंडिया मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि जो कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स उनकी क्वालिटी क्या होगी? इन्हेंस होगी। और अगर क्वालिटी इन्हेंस होगी तो अकॉर्डिंगली क्या होगा? जो हमारा पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है? इसी तरीके से इसने एक और नोट दे रखा, देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्लीन इंडिया मिशन। तो क्लीन इंडिया मिशन का भी रिजल्ट क्या होगा? जो हमारा पीपीसी है इट विल शिफ्ट टू द राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। वाई? बिकॉज इससे भी किससे? क्लीन इंडिया मिशन से हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी ग्रेजुअली क्या होगी? इम्प्रूव होगी, रिसोर्स हेल्दी होगा। एंड इफ़ द ह्यूमन रिसोर्स विल बी हेल्दी तो आउटपुट भी
कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, जिससे हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा. This is all about today. Today we have discussed about the features of basic properties of PPC, as well as we have discussed about the some topics such as the fuller and underutilization of resources, growth of resources, and the impact of Skill India Mission and Clean India Mission on the PPC. This is all about today. God bless you all.